सिकंदराबाद में बाबू बोधराज कॉन्वेंट स्कूल का गौरव सम्मान समारोह। मेधावी छात्रों को मिला विशेष सम्मान। पूर्व डीजीपी डीएस चौहान ने की शिरकत। स्वर्णिका के सांस्कृतिक नृत्य ने सबका मन मोह लिया। सिकंदराबाद के रेलवे रोड स्थित बाबू बोधराज कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। विद्यालय ने एक बार फिर शिक्षा और खेल दोनों क्षेत्रों में अपनी सशक्त पहचान दर्ज कराई। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत मां शारदा की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करके की गई। इस शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व डीजीपी डीएस चौहान और चेयरमैन परशुराम चोपड़ा उपस्थित रहे। कई विशिष्ट जन भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। समारोह का सबसे आकर्षक क्षण रहा स्वर्णिका की अद्भुत नृत्य प्रस्तुति, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और पूरे सभागार में तालियों की गूंज सुनाई दी। खेल गतिविधियों में भी बच्चों का जोश देखने लायक था। बैडमिंटन, बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, कराटे, शूटिंग और टेबल टेनिस में विद्यार्थियों ने प्रशंसनीय कौशल का प्रदर्शन किया। परशुराम चोपड़ा ने कहा, पढ़ाई का केंद्र नहीं बल्कि प्रतिभाओं को तराशने का मंच है। पूर्व डीजीपी डीएस चौहान ने विद्यालय की प्रगतिशील सोच और खेलों को बढ़ावा देने के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह विद्यालय दिल्ली के स्कूलों के स्तर की सुविधाएं दे रहा है। आप उसका लाभ उठाएं और सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। विद्यालय के डायरेक्टर राम चोपड़ा ने कहा कि स्कूल हर बच्चे में मौजूद खास गुणों को पहचान कर उन्हें सही दिशा देने का प्रयास करता है। ऐसे आयोजन बच्चों में आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता दोनों को बढ़ाते हैं। अंत में सभी अतिथियों, अभिभावकों और विद्यार्थियों का आभार व्यक्त किया गया। Suzuki de. Oh! Fast. Jimmy. Play. Punch! Jimmy. Touch. Vamos. Line up okay. And personality who does not need an introduction. He is a man of words, a man of wisdom, and a man of empowerment. Thank you so much, sir, for sparing your precious minutes for us. And defeats for success and failures. Beyond the obvious health and activity benefits. It teaches about teamwork and team spirit. It teaches us to work together to achieve a common goal. It's also about trust and responsibility and about dealing with success and failure. Sports Day is a red letter on the calendar. It is a day when students are freed from their classroom to run and jump around, freed from the factors of learning. It is a day for mother and father to cheer on their son and daughter. Moreover, Sports Day is a day for celebrating the spirit of a sportsmanship. So now I request our honorable chief guest, the chairman of our school, Mr. Parshuram Chopra sir, the director of our school, Mr. Ram Chopra, Mrs. Vibha Chopra, Mr. Gaurav Chopra and Mrs. Sheetal Chopra, and our principal, Mr. Jaswinder Singh, to please grace on the stage for lamp lighting ceremony as everything starts on the name of the God.
coordination and the confidence. Shiva Naitik, class 9, 200-meter flat race, first position. जितना स्पार्क आएगा आपकी तालियों से आएगा, अगर नहीं बचे तो कोई स्पार्क नहीं होगा इसके अंदर। Okay, it's again. It's again Talha from class 12, 100-meter flat race, first position. Shivang Srivastava, class 11, 100-meter flat race, first position. Siddharth Bhati, class 10, 100-meter flat race, first position. Naitik Rathi, class 9, 100-meter flat race, first position. सर बार Aniket Bhati, class 11, 200, class 12. Saurabh Bhati, class 12, 100-meter flat race, third position. 10th. Jigar, class 10, 100-meter flat race, third position. Vansh, class 12, commerce. Vansh, 200-meter flat race, third position. Parikshit, class 9, 100-meter flat race, third position. मिलने को बुलाओ। Ayush, class 12, for badminton, he bagged first position. Ayush, class 12, badminton, first position. आयुष बैडमिंटन Kashish, class 12, Kashish, class 12, for badminton, bronze medal, third position. Fiza, class 12, for badminton. Sony, class 12, badminton, second position. Yashika, class 12, badminton, first position. Badminton, third position. Badminton, third position. बच्चों को बैठा दो ना, अंदर बैठा दो बच्चों को। Fatima, class 11, Fatima, class 11, third position. Saurish, class 9, badminton, third position. Sarthak, class 9, badminton, second position. Sanskriti, class 9,
Badminton. Ayush. Yash Bharadwaj, class 10th. Yash Bharadwaj. Mankirat Singh. Mankirat, class 4th. Aman Khan, class 11th. Boxing, first position. Solanki, class 9. Meet Bharti. Meet Anshu Adhana, class 9. Shooting, third position. आप लोग लंच नहीं करके आए हो क्या? Harsh, class 10th, table tennis, first position. Shiva, class 11th. Kami, class 10th. Vanshika, class 11th. Vanshika, class 11th, first position. The table tennis, second position. Sanskriti, Tanvi, Disha, second. 10th, third position. Siddhi Singh. Bhumi is not here, I suppose. Bhumi है नहीं है. Siddhi Singh, class 9, third position. Pranav, class 10, table tennis, third position. Table tennis, third position. Taekwondo, first position. Kanish Bhati, Ridul, class 5. Taekwondo, first position. First. Second position. डायरेक्टर गौरव चोपड़ा, राम चोपड़ा और विभा चोपड़ा, हमारे बीच उपस्थित सीओ साहब, इंस्पेक्टर साहब, इनका भी मैं स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में हमेशा स्कूल को एक नई दिशा देने वाले हमारे राजेंद्र कंसल जी भी हैं, मैं उनका भी यहाँ स्वागत करता हूँ। और सबसे पहले मैं जो बच्चे जिन्होंने भी यहाँ पर इनाम प्राप्त किया है, सबसे पहले मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बहुत बहुत उनको मुबारकबाद। और जो बच्चे इस बार ऐसा नहीं कर पाए, उनके लिए भी मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो आने वाले समय में और अच्छा प्रदर्शन करके न केवल स्कूल का, न केवल सिकंदराबाद का, बल्कि हमारे इंडिया का नाम ऊंचा करें। मैं अपने बहुत फख्र के साथ ये कह सकता हूँ कि इस स्कूल में जो हमारे कोच यहाँ पर कार्यरत हैं, उन्होंने अपने अथक प्रयास से कई बच्चों को स्टेट लेवल और इंडिया लेवल तक पहुँचाया, इसलिए वो भी इसके बहुत 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 मुबारकबाद। आने वाले समय में मैं ये उम्मीद करूँगा कि इसी तरह से, जिस तरह से उन्होंने ये प्रयास कर एक सिकंदराबाद को, अपने स्कूल को एक नया आवाम दिया है, वो आगे आने वाले भी समय में ऐसा ही करते रहेंगे। हमारे मुख्य अतिथि चौहान साहब, जो कि हमारे लिए कोई नए नहीं है,
शायद आपको तो नहीं याद होगा, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं। अब मैं मुख्य अतिथि जो हमारे हैं चौहान साहब, उनसे ये प्रार्थना करूंगा कि वो कृपया मंच पर आए और अपने भाषणों से स्टूडेंटों को और यहाँ पर उपस्थित सज्जनों को प्रोत्साहित करें। एकेडमिक डायरेक्टर विभा चोपड़ा, प्रिंसिपल जसविंदर सिंह जी, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित भास्कर DPSP। भास्कर मेरे बेटे जैसा है, मेरे दोस्त का बेटा है। और अनिल शाही जी, इंस्पेक्टर साहब। जानकर बहुत खुशी हुई कि ये स्कूल 1993 में स्थापित हुआ था और 3 साल बाद ही मैं इस जिले का कप्तान था। ये स्कूल श्रीमती किरण चोपड़ा जी, जो फाउंडर डायरेक्टर थी, उनका सपना था। उन्होंने बहुत शिद्दत से, बहुत प्रेम से इस स्कूल की स्थापना की। उनका एक स्कूल के लिए विजन था। चोपड़ा फैमिली से मेरा पहले भी संवाद हुआ जब उन्होंने एक अच्छा क्रिकेट टूर्नामेंट कराया था ग्रेटर नोएडा में। और यहाँ के क्रिकेट के कोच राजेश शर्मा जी, जो हमारे बुलंदशहर क्रिकेट एसोसिएशन के मेंबर भी हैं, उन्होंने मुझे उस कार्यक्रम में बुलाया था। बहुत ही उत्कृष्ट क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था और बड़े अच्छे रणजी प्लेयर्स वहाँ खेलने आए थे इस टूर्नामेंट में। इस इलाके में, या मैं कहूँ कि दिल्ली NCR रीजन में, मेरे ख्याल से ये पहला स्कूल होगा जिसमें स्पोर्ट्स पर इतना अधिक जोर है जितना एकेडमिक्स पर है। और 18 डिसिप्लिन के कोचेस यहाँ पर मौजूद हैं, 18 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन के। और ये कोच सारे बहुत अच्छे काबिलियत के, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के, नेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं जो कोचिंग कर रहे हैं यहाँ पर बच्चों की। मुझे पूरा विश्वास है कि ये स्कूल जो है एक सतत, जिसे फैक्ट्री कहते हैं, वैसे सप्लाई बनेगी अच्छे खिलाड़ियों की, जो अपने देश में अपना नाम रोशन करेंगे, अपने स्कूल का नाम रोशन करेंगे। वर्तमान में बुलंदशहर जिले के कप्तान दिनेश कुमार सिंह मेरे साथ काम कर चुके हैं। बहुत ही आउटस्टैंडिंग, अपराइट और ऑनेस्ट ऑफिसर हैं और मैंने उनको बहुत नज़दीकी से काम करते हुए देखा है। उन्होंने बुलंदशहर ज़िले में भी बहुत अच्छा काम किया है, कर रहे हैं और राज्य सरकार की नीतियों को बहुत बखूबी अपनी टीम के साथ मिलकर लागू कर रहे हैं। यहाँ जनता में सुरक्षा की भावना पैदा कर रहे हैं। जब जनता सुरक्षित रहती है तभी सारी गतिविधियाँ, स्पोर्ट्स है, इंडस्ट्री है, स्कूल है, एजुकेशन है, व्यापार है, ये सारी गतिविधियाँ बहुत सुचारू रूप से चलती हैं। यहाँ की जो कलेक्टर साहिबा हैं श्रुति पांडे जी, वो भी हमारे एक पुलिस अफसर की वाइफ है। शैलेश ने भी मेरे साथ बहुत नज़दीकी से काम किया है और उन्होंने भी इस ज़िले को, श्रुति जी ने बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन दे रखा है, विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। सिकंदराबाद एक ऐसा कस्बा है बुलंदशहर का जो दिल्ली और बुलंदशहर के बीच में आता है और आप ये कह सकते हैं कि ये गेटवे है यूपी का दिल्ली NCR के लिए। तो जो गतिविधियां दिल्ली NCR में होती हैं वही स्टैंडर्ड्स यहाँ स्थापित करने पड़ते हैं। और मैं श्री परशुराम चोपड़ा जी का और उनके दोनों बेटों का धन्यवाद करूँगा, उनकी बहुओं का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने अपने स्कूल में वही स्टैंडर्ड्स कायम किए जो दिल्ली में हैं। तो जिसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मेरी शिक्षा सैनिक स्कूल सधारा में हुई। सैनिक स्कूल में स्पोर्ट्स कंपलसरी होता है। आज जब बच्चे बॉक्सिंग करते हुए देखा तो मुझे अपने क्लास 5 की बॉक्सिंग बाउट याद आ गई, जब मुझे भी बॉक्सिंग में वहाँ रिंग पे चढ़ना पड़ा था जो है। और स्पोर्ट्स, आपके टीचर कह रहे थे कि स्पोर्ट्स एक फ्री पीरियड होता है जहाँ बच्चा अपने एकेडमिक से दूर जाके अपने आप को रिलैक्स कर सकता है। लेकिन मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी शिक्षा अगर कहीं मिलती है तो खेल के मैदान में मिलती है। और खेल के मैदान में सबसे पहला सबक जो मिलता है
कि कैसे ग्रेसफुली अपनी हार को स्वीकार किया जाए। जो बच्ची हार को स्वीकार करना जान लेता है और ग्रेसफुली स्वीकार करना जान लेता है, सीख लेता है, वही आगे चल के ज़िंदगी में जीतता है। जो बॉक्सिंग बाउट मैंने आपको बताई, जो मेरी पहली बाउट थी, वो बाउट में हार गया था और हारने के बाद में जो हम लोग नीचे उतरे बॉक्सिंग रिंग से, तो जो जीता हुआ था मेरा साथी था, उसको मैंने गले मिलके बधाई दी और उसने मुझे गले मिलके सांत्वना दी कि अगली बार तुम और अच्छा फाइट करना जो है। तो ये खेल का मैदान सिखाता है आपको, और मुझे पूरा विश्वास है कि बच्चे खेल के मैदान से जो सबक सीखते हैं वो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलते। क्लास में सीखा हुआ हो सकता है कि आप भूल जाएं। आज की हमारी एंकर मैडम अभी बता रहे थे, चोपड़ा साहब बोले जो है गौरव, कि जो एंकर हैं वो केमिस्ट्री की टीचर हैं और आपके केमिस्ट्री की सबक बच्चे भूल जाएंगे, लेकिन राजेश शर्मा जो सबक दे देंगे खेल के मैदान में वो बच्चे नहीं भूलेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो स्कूल में ऑलराउंड कल्चर आप बना रहे हैं, जिसमें एकेडमिक्स पर भी उतना ही जोर है और स्पोर्ट्स में भी उतना ही जोर है, मुझे पूरा विश्वास है कि स्कूल के बच्चे आगे चलकर बुलंदशहर जिले का, अपने राज्य का, उत्तर प्रदेश का और देश का नाम रोशन करेंगे। मैं श्री परशुराम चोपड़ा जी को और उनके सभी पूरे टीम को, गौरव को, राम को, विभा को, जसविंदर जी को, शीतल जी को मैं बधाई देता हूँ कि आप सब लोग जो है इसी तरह से अपने स्कूल को आगे बढ़ाते रहें। आपका क्रिकेट ग्राउंड तैयार हो रहा है, भास्कर आपको जाके वो ग्राउंड देखना चाहिए, मैंने उसका वीडियो देखा है। तो बहुत अच्छा ग्राउंड, ऐसी फैसिलिटी डेवलप कर रहे हैं जहाँ बहुत अच्छी क्रिकेट खिलाई जा सकेगी, कोचिंग की जा सकेगी। तो यहाँ से बहुत अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी पैदा होंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। थैंक यू। तो मैं अपने जो स्कूल की हमारी थिंकिंग है, सोच है, मैं आपके सामने उसको समक्ष रखना चाहता हूँ कि बेसिकली देखिए, हमारा एकेडमिक स्पोर्ट्स स्कूल है। मैडम पूरा प्रयत्न करती हैं कि एकेडमिक में हमारे अच्छे से अच्छा रिजल्ट आए, और एक दौर ऐसा था सर, हम बहुत मेहनत कर रहे थे। देखिए, क्योंकि हमारा जो स्कूल है ना वो थोड़ा सेमी रूरल एरिया में है, और रूरल बच्चे भी आते हैं। और हमने देखो, एक स्कूल क्या है सर, एक स्कूल जौहरी है, वो जौहरी का काम करता है। वो ये देखता है कि बच्चे में हुनर क्या है और वो हुनर तराशने की कोशिश करता है। जरूरी नहीं है कि बच्चा हर कोई इंजीनियर ही बने, हर कोई डॉक्टर ही बने, ये जरूरी नहीं है हर कोई बच्चा एस्ट्रोनॉट ही बने, हर कोई साइंटिस्ट ही बने। ऐसा भी तो है ना, विराट कोहली भी तो बनेगा, कोई सचिन तेंदुलकर भी तो बनेगा, कोई लिएंडर पेस भी तो बनेगा। तो एक स्कूल ने, हमारे स्कूल ने वैसे जौहरी का काम करा है। ये जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं, इनमें से काफी बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई में भी अच्छे हैं, मगर काफी बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई में एवरेज है, मगर खेल में इतने अच्छे हैं। अगर सिर्फ हम उनको वो राह ना दिखाएं और खेल में उनको फोकस करवाते रहे, तो शायद वो अचीवमेंट हासिल ना कर पाए जो आज वो अचीवमेंट हासिल कर रहे हैं। तो हमारा सिर्फ वही फोकस रहता है जो बच्चा जिस क्षेत्र में माहिर हो। इसलिए सर, हमने जब स्टार्टिंग में जब मेहनत कर रही थी मैडम, हमारी जब शादी हुई थी 2009 में, तो मैडम पहले मदर बहुत मेहनत करती थी, फिर वाइफ बहुत मेहनत करने लगी। तो हमने देखा रिजल्ट में हमारा बच्चा टॉप नहीं कर रहा, कभी 3rd पोजीशन पे आ रहा है, कभी 4th पोजीशन पे आ रहा है। तो वो जितनी मेहनत कर रहे हैं वो हासिल नहीं हो पा रही वो अचीवमेंट। तो हमने देखा, जब हमने स्पोर्ट्स को इन्वॉल्व करा अपने स्कूल में, और स्पोर्ट्स से सर हमने एक चीज एक्सपीरियंस करा कि जब बच्चा स्पोर्ट्स खेलता है ना, तो उसके मस्तिष्क जो है वो बहुत शार्प हो जाते हैं, नर्वस सिस्टम बहुत शार्प हो जाता है, रिफ्लेक्सेस बहुत शार्प हो जाते हैं, उसकी मेमोरी बहुत शार्प हो जाती है, और वो ही खेल उसकी स्टडीज में बहुत हेल्प करता है। क्योंकि आफ्टर ऑल भाई हम ये बात जानते हैं सर, बच्चा आज हम पढ़ा लें लिखा लें और बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी ना हो तो पढ़ा लिखा बच्चा किस काम का है सर। इसलिए हमारा फोकस रहता है कि स्पोर्ट्स, ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता कि जब ऐसा हफ्ते में 3 या 4 दिन हम बच्चों को ऐसा स्पोर्ट्स में जरूर देते हैं कि बच्चा कम से कम फिटनेस अपनी बरकरार रहे। बच्चा फिट रहेगा तभी बच्चा हिट रहेगा सर। और हमारा फोकस इसी दौर में रहता है कि बच्चा फिट रहेगा, इम्यूनिटी बच्चे की अच्छी रहेगी, बच्चा खेल में तो अच्छा करेगा ही करेगा, पढ़ाई में भी अच्छा करेगा। और सर आपका सहयोग रहा, स्टेडियम सर ऐसा निर्माण करेंगे हम स्टेडियम का, वहाँ सिर्फ क्रिकेट का ही ग्राउंड नहीं बनेगा सर, वहाँ ओलंपिक स्टाइल में बैडमिंटन भी रहेगा, बास्केटबॉल भी रहेगा, टेबल टेनिस भी रहेगा। और सर भगवान ने चाहिए आने वाले 2 साल में आपके क्षेत्र में आप ऐसा स्टेडियम तैयार करके देंगे कि यहाँ से इतनी प्रतिभाएं निकलेगी
हमारे यहाँ पर सब अधिकारियों को भी गर्व होगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी गर्व होगा हमारे सिकंदराबाद में। और सर बहुत बहुत आभारी है, आपने समय निकाला और सरप्राइज गिफ्ट था सर सीओ साहब का, इंस्पेक्टर साहब का, वो आए, बहुत बहुत आभार आप लोगों का बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए। जय हिंद, जय भारत। हमारे मुख्य अतिथि जी चौहान साहब आए, उनके लिए धन्यवाद है ही है। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको कि हम जो ये स्टेडियम बना रहे हैं और जो और भी कार्यक्रम कर रहे हैं वो चौहान साहब के बिना नहीं बन पाएंगे। तो मैं हमसे यही प्रार्थना करूंगा कि बच्चों पर आशीर्वाद बनाए रखें और समय समय पर हमको निर्धारित करते रहें कि हमको क्या करना है। धन्यवाद। बच्चों को देख के, स्पोर्ट्समैन को देख के ऐसा कौन शख्स है जो आपको ये आश्वासन नहीं देगा कि ये स्कूल को आप सपोर्ट करेंगे, इन बच्चों को आप सपोर्ट नहीं करेंगे। तो मेरा सौभाग्य होगा इन बच्चों को सपोर्ट करना। और वर्तमान में इतना अच्छा माहौल है राज्य में, और हमारे सीएम साहब योगी आदित्यनाथ जी के लीडरशिप में प्रदेश जो आगे जा रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि स्कूल उनके विजन को साकार करने में जरूर सहयोग करेगा। थैंक यू। मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ कि 96 में जब मैं एसएसपी था, भास्कर और साई साहब आप भी सुन लीजिए, तो मैं बहुत क्रिकेट खेलता था। उस समय मैं यंग था, तो हम लोग बहुत अच्छा इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी पुलिस लाइन्स में कराए थे। पिच अपने मिलके हम लोग सब बनाए थे, राजेश सब हेल्प करते थे। एक यूपी के रणजी क्रिकेटर थे राकेश शर्मा, वो ओपनिंग बैटिंग करते थे यूपी रणजी टीम के लिए। उनकी काफ़ी यंग एज में डेथ हो गई, वो हमारे साथ खेलते थे। और 96 से ये मेरे जोड़ीदार हैं खेल के जो है। मैं तो ओपनिंग बैटिंग करने जाता था, ये 4 डाउन 5 डाउन आते थे, और जितना लंबा छक्का ये मारते थे, हाँ, वो क्रिकेट के मैदान पे इनका नाम पड़ा है टोल सर। तो इनकी बॉल की टॉल जो है इतनी दूर तक जाती थी, तो जिसकी वजह से इनका नाम पड़ा है। तो आप लोगों के लिए ये नॉलेज है जो रहनी चाहिए। और मुझे बीच में तो बताया था कि पिच अभी भी थी थोड़ी, शायद अब बची है कि नहीं बची है, क्योंकि मेरे बाद आलोक शर्मा जी आए थे एसएसपी, तो वो बास्केटबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। उन्होंने बास्केटबॉल कोर्ट बनवाई थी पक्की जो है। तो वो हम लोगों का स्पोर्ट्स का योगदान था पुलिस डिपार्टमेंट में।